અર્થની અંદર દાદા બની રહ્યા છે એવા આપણા સૌના હૃદય સમ્રાટ લોકલાડીલા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ આજે સમારંભના અધ્યક્ષ તરીકે બિરાજમાન છે। આપણે એમને સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। સૌ પ્રથમ હું આપણા પાટણ જિલ્લાના અને સિદ્ધપુરના એમએલએ જેને શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું છે અને જેઓ ખૂબ જ ભામાશા તરીકેનો ઉત્તર ગુજરાતની અંદર નામના મેળવી રહેલા છે એવા માનનીય બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબને હું વિનંતી કરું કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ શ્રીનો પાઘડી ઓઢાડીને રાજપૂતાના રિવાજ મુજબ એમનું સન્માન કરે। માનનીય કેશુભા પરમારને પણ વિનંતી કે ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાન છે, બનાસ બેંકની અંદર ડિરેક્ટર તરીકે છે, કેશુભા તલવાર આપી અને સાચા અર્થની અંદર એક છાત્ર તેજ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર પુનર્જીવિત થાય એ માટે સંસ્કૃતિના સંવર્ધનનું પ્રતીક તલવાર અર્પણ કરશે। આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈશું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। શ્રી અશ્વિનભાઈ પટેલ જેઓ કર્ણાવતીમાં નિવાસ કરે છે, કેમિકલ વ્યવસાય ધરાવે છે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ગુજરાત ક્ષેત્રના સહમંત્રીની જવાબદારી નિભાવે છે। એમને વિનંતી કરું કે પાટણના પટોળાનો ખેસ વિશ્વ ફલક ઉપર પાટણ પટોળા તરીકે ઓળખાય છે। સાહેબશ્રીને ખેસ અર્પણ કરે એમનું સન્માન કરશે। આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ। માનનીય હર્ષદભાઈ ગિલેટવાલા, આપ કર્ણાવતીમાં નિવાસ કરો છો, કર્ણાવતી મહાજન વેપારી એસોસિએશનના પ્રમુખ છો, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ઉત્તર ગુજરાતના અધ્યક્ષ છો। આપને વિનંતી કરું કે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબશ્રીને રાજમાતા વિરાંગના નાયિકા દેવીની પ્રતિકૃતિ અર્પણ કરી આપશ્રીનું સન્માન કરે। આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવી લઈએ। यूं ही तो हम निकले थे अकेले, लोग आते गए और कारवां बनता गया। शिरीषभाई पटेल उत्तर गुजरात प्रांत कारोबारी सभ्य है, भारत विकास परिषद में सिद्धाहेम शाखा में तेओ सेवा आपी रह्या छे। रुद्रमहलनी प्रतिकृति आपीने माननीय मुख्यमंत्री साहेबश्रीनु सन्मान करशे। रुद्रमहल राणीनी वाव पछी विश्व तख्ताओ पर આપણે એક વિશ્વાસ રાખીએ। અહીંયા સિદ્ધપુર જનો પણ ઉપસ્થિત છે, સિદ્ધપુરનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહજી રાજપૂત પણ ઉપસ્થિત છે। આપણે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબને અહીંયા વિનંતી કરીએ કે રુદ્રમહલનું ફરીથી પુનઃ જીર્ણોદ્ધાર થાય। હર હર મહાદેવ। શ્રી નલિનભાઈ પટેલ જેઓ હિંમતનગરમાં નિવાસ કરે છે, આપ પ્રાંત મંત્રી તરીકે માર્ગદર્શન કરો છો। આપના રગે રગની અંદર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ રેલાયેલું છે। વીએચપી નૈતિક શિક્ષા આયામના 4 પુસ્તકોનો સંગ્રહ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને અર્પણ કરી એમનું સ્વાગત કરશે શ્રી નલિનભાઈ પટેલ। આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના નૈતિક શિક્ષાના આયામના 4 પુસ્તકોના સંગ્રહ બાદ एक जे समारंभना मुख्य वक्ता तरीके अपनी वच्चे उपस्थित छे माननीय श्री विनायक रावजी देशपांडे जी, जो केंद्रीय सह संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में सेवा आपी रह्या छे। साहेब, आपनु केंद्र दिल्ली छे, आप श्री दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय सह संगठन मंत्री दायित्व वहन करो छो। गौरवनी वात अमारा माटे ए छे, गौरवनी वात अमारा माटे ए छे के आप साहेबे वर्ष 2007 थी અમારી પાટણની પ્રભુતાને સાચા અર્થમાં ઉજાગર કરવાનું કામ નાયિકા દેવીના ચારિત્ર નિર્માણની વાતો લઈને અમારા સુધી પહોંચાડી છે। આપણે સમગ્ર પાટણજનો ફરી એકવાર વિનાયક રાવજીનો તાળીઓના ગડગડાટથી એમનું અભિવાદન કરી લઈએ। માનનીય વિનાયક રાવજી 1974 થી પ્રચારક તરીકે મુંબઈના વતની છે, છતાં પણ ફરજ બજાવે છે। એટલે કે 49 વર્ષોનો સમય છે। 1984 થી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાં છે, અત્યારે સહ સંગઠન મહામંત્રી તરીકે દિલ્હીની અંદર
ઉપસ્થિત છે, આપણા સૌના માટે ગૌરવની વાત એ બની કે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહી અને આપણને એક માર્ગદર્શક તરીકે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સૌ પ્રથમ માનનીય વિનાયકરાવજી દેશપાંડેનો શ્રી ભાર્ગવભાઈ ચોકસી ને વિનંતી કરું કે પટોળાના ખેસ થકી એમનું સન્માન કરે. ભાર્ગવભાઈ ચોકસી સિદ્ધહેમ શાખા ભારત વિકાસ પરિષદ પાટણના પ્રમુખ છે, સાથે સાથે પ્રમુખ શ્રી ઝવેરી બજાર એસોસિએશનમાં પણ પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે, સેવા આપી રહ્યા છે. આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવી લઈએ. વિનોદભાઈ સોલંકી ગુજરાત પ્રદેશ રવિધામ પ્રમુખ અધ્યક્ષ અખિલ ભારતીય રવિદાસિયા ધર્મ સંગઠન ગુજરાત પ્રદેશને હું વિનંતી કરું કે માનનીય વિનાયકરાવજી દેશપાંડેજીનો રુદ્રમહાલની પ્રતિકૃતિ આપી એમનું સન્માન કરે. અંશુબેન જોશી જેઓ પણ માનનીય વિનાયકરાવજી દેશપાંડેને નાયિકા દેવીની પ્રતિકૃતિ અર્પણ કરશે. અંજુબેન જોશી સરિયદના નિવાસી છે, દુર્ગા વાહિનીમાં પ્રાંત સંયોજિકાની જવાબદારી વહન કરી રહ્યા છે. તાળીઓથી આપણે સૌ વધાવી લઈએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આપણી વચ્ચે માનનીય શ્રી બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબ ઉત્તર ગુજરાતના ભામાશાહ, જેમણે શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું છે. ગોકુલ રિફોલ્સ નામની વૈશ્વિક લેવલની અંદર કંપનીના તેઓ સર્જનહાર છે અને સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે રાજ્ય સરકારની અંદર એક પણ રૂપિયોનો પગાર લીધા વગર તેઓ કન્યા કેળવણી પાછળ પોતાનું સમગ્ર પગારનું દાન આપી રહ્યા છે. બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબ જેઓ ઉદ્યોગ મંત્રી, શ્રમ રોજગાર અને લઘુ ઉદ્યોગોની અંદર પોતે એક સરસ મજાની જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. ડોક્ટર વિમેશભાઈ શાહ ને હું વિનંતી કરું કે તલવાર અર્પણ કરી માનનીય શ્રી બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબનું સન્માન કરે. ડોક્ટર વિમેશભાઈ શાહ, આપ ખ્યાતનામ તબીબ છો. ઉત્તર ગુજરાતના ઘરે ઘરમાં આપનું નામ છે. વર્લ્ડ એવોર્ડ ધરાવો છો. ગાયનેક સર્જનની અંદર દુનિયાની અંદર ટાંકા વગરના ઓપરેશન કરવાની અંદર માહિર એવા વ્યોમેશભાઈ સાહેબને હું વિનંતી કરું કે માનનીય શ્રી બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબનું તલવાર અર્પણ કરી સન્માન કરે. ભરતભાઈ નાડોદા, આપ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના શુભેચ્છક છો, શિક્ષણ પ્રેમી છો. પટોળાનો ખેસ અર્પણ કરી માનનીય શ્રી રાજપૂત સાહેબનું સન્માન કરો. ભરતભાઈ નાડોદા. ભરતભાઈ જોશીને ખાસ વિનંતી કે પટોળાનો ખેસ અર્પણ કરે. તાળીઓથી વધાવીએ. ડોક્ટર રાજેશભાઈ ભાનુશાલી, એમડી મેડિસિન, ખ્યાતનામ ડોક્ટર છે. ઉત્તર ગુજરાતની અંદર પણ એમની સારી એવી સેવા છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના શુભેચ્છક છો. આપને વિનંતી કરું કે નાયિકા દેવીની પ્રતિકૃતિ અર્પણ કરી માનનીય શ્રી રાજપૂત સાહેબ શ્રીનું આપ સન્માન કરો. ડોક્ટર રાજુભાઈ ભાનુશાલી. ત્યારબાદ સંધ્યાબેન પ્રધાન. શું કરું સન્માન આપના, આપ ખુદ ખુશ્બુ ભર્યા ગુલજાર છો. શું કરું સન્માન આપના, આપ ખૂબ ખુશ્બુ ભર્યા ગુલજાર છો. નૈતિક શિક્ષા પુસ્તકનો સેટ અર્પણ કરી સંધ્યાબેન પ્રધાન માનનીય શ્રી બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબ શ્રીનું સન્માન કરશે. આપણે સૌ તાળીઓમાં કંજૂસાઈ ના કરીએ. આપણી વચ્ચે માનવંતા મહેમાનો ઉપસ્થિત છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેનશ્રી. માનનીય અશોકભાઈ રાવલ, જેઓ કર્ણાવતીમાં નિવાસ કરો છો, ગુજરાત ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્ર મંત્રી તરીકેની જવાબદારી વહન કરો છો, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની અંદર વર્ષોથી જોડાયેલા છે એવા અશોકભાઈ રાવલ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. પટોળાના ખેસથી સન્માન કરશે દેવદત્તભાઈ જૈન. આપ વરિષ્ઠ અધિવક્તા છો, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના શુભેચ્છક છો. દેવદત્તભાઈ જૈનને હું વિનંતી કરું કે માનનીય શ્રી અશોકભાઈ રાવલનું સન્માન કરે. ત્યારબાદ આશાબેન પટેલ અને કિરણભાઈ
देसाई। खूब खूब धन्यवाद। आशाबेन पटेल, आप सहसंयोजक भारत विकास परिषद सिद्धहेम शाखाમાં સેવાવહન કરી રહ્યા છો। નાયિકા દેવીની પ્રતિકૃતિ અર્પણ કરી અશોકભાઈ રાવલનું સન્માન કરો। આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવી લઈએ। કિરણભાઈ દેસાઈ, કૃષ્ણા ગ્રુપ પાટણની અંદર તેઓ એનજીઓ સાથે જોડાયેલા છે। સાથે સાથે દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી દીવડીની અંદર મંત્રી તરીકે પણ ફરજ બજાવે છે। રાણીની વાવની પ્રતિકૃતિ અર્પણ કરી માનનીય શ્રી અશોકભાઈ રાવલ સાહેબ શ્રીનું સન્માન કરો। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ। આ સાથે આપણી વચ્ચે બે अन्य महानुभाव उपस्थित है जो दायज पर विराजमान नहीं। श्री खुशीबेन शाह नायिका देवी फिल्म द्वारा समग्र गुजरातना घरे घरे एमणे नायिका देवी बात पहोंचाडेली छे। खुशीबेन आपणी वच्चे उपस्थित है। आपणे सौ ताळीओथी बेननुं सन्मान करी लईए। माननीय श्री नीरजजी दानेरिया जो अखिल भारतीय बजरंग दळना संयोजक है, जो पण आपणी वच्चे उपस्थित है। अपने हर हर महादेव, हर हर महादेव। कार्यक्रम ने आगळ वधारता अपनी वच्चे समारंभना मुख्य वक्ता श्री विनायक रावजी देशपांडे जी उपस्थित है। हूँ विनंती करूँ कि तेओ समयनी पाबंदी वगर जेना सानिध्यमां विश्व हिंदू परिषदना सानिध्यमां जे माटे कार्यक्रम થઈ રહ્યો છે આપણા હૃદય સુધી વાત પહોંચાડે। માનનીય શ્રી મુખ્ય વક્તા વિનાયક રાવજી દેશપાંડેજી। आज के अपने कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और यहाँ के एक मंत्री मिनिस्टर माननीय बलवंत सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद के पूरे गुजरात राज्य के माने क्षेत्र के मंत्री अशोक भाई और आप सभी हिंदुत्वनिष्ठ धर्म प्रेमी देशभक्त भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए। मैं पहले आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब भारत माता के सपूत है, हिंदू हैं और रानी नायकी देवी को अभिवादन करने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं और राम के भक्त भी है। तो पहले हम सब उसका जयकार करते हैं। बोलो भारत माता की, हिंदू धर्म की, रानी नायकी देवी की जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज बहुत ही अच्छा योग है। गुजराती में नायिका देवी कहते हैं, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी में नायकी देवी कहते हैं। चलो मैं भी नायिका देवी कहता हूं। तो राज माता नायकी देवी के गौरव के निमित्त हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित आए हैं। इसमें और भी एक अच्छी बात ऐसी है, ये जो 2024 का जो वर्ष है, इस वर्ष में और भी दो महा महिलाओं का एक प्रसंग है, बहुत बड़ा उत्सव है। एक वो माने लोक माता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी, ये वर्ष जो है वो उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। इंदौर में उसका कार्यक्रम का प्रारंभ हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने भी सूरत में, जलगांव में, पुणे में, भारत में लगभग 25 जगह कार्यक्रम हो गए, पूरे साल भर चलने वाले हैं। दूसरा इस वर्ष की महत्ता है कि जिन्होंने अकबर के साथ जबरदस्त संघर्ष किया और पहली लड़ाई में वो जीती, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी लड़ाई में जिसका बलिदान हो गया, वो धर्म और देश के लड़ने वाली और उसके लिए जिसका बलिदान हो गया, वो रानी दुर्गावती
आज का मध्य प्रदेश गढ़ा मंडला की रानी, उसका ये पंच जन्म शताब्दी वर्ष है। 5 अक्टूबर 1524 उनकी जन्म तिथि, इस साल 500 साल पूरे होते हैं। सारे भारत में विश्व हिंदू परिषद इस नाते से अनेक छोटे बड़े कार्यक्रम करते हैं। मैं 2 इस महान महिलाओं का पहले पुण्य स्मरण करता हूं। आज इस कार्यक्रम के लिए हम एकत्रित आए, ऐसे जो अनसंग हीरोज और अनसंग हीरोइंस है अपने देश के इतिहास में, जिनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलती है, हिंदुत्व का और देशभक्ति का एक भाव लोगों के मन में जागृत होकर उठता है। इनका चरित्र, इनका जीवन सारे लोगों के सामने आना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ से ही प्रयत्न करती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए दोस्तों, अपना हिंदुस्तान का इतिहास विलक्षण पराक्रम का एक संघर्ष का है। जितना पराक्रम और संघर्ष हम हिंदुओं ने किया है, दुनिया के किसी भी समाज ने या कौम ने नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ऐसा रहा कि 150 साल अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज्य किया। अंग्रेजों की जनसंख्या अपने देश में कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं थी। उनका हमेशा डर लगता था कि जो 27-28 करोड़ का जो हिंदू समाज इस देश में रहता है, वो अगर जागरूक हो जाएगा तो हम एक दिन में भी इस देश पर राज्य नहीं कर पाएंगे। तो अपने सारे राज्यकाल में हिंदुओं का स्वाभिमान जागरूक न हो, उनमें हीन भाव, जिसको अंग्रेजी में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, न्यूनगंड निर्माण होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपना इतिहास, इसके संदर्भ में उन्होंने दुष्प्रचार किया। वेद माने क्या? गडरियों के गीत है, उसमें कुछ भी नहीं है। रामायण महाभारत इट इज अ मिथ, वो तो दंत कथा है, वो इतिहास नहीं है। और आपके देश का इतिहास पराभव का इतिहास। अब जीते कब? अरे आपको ग्रीकों ने हराया, शकों ने हराया, हुनों ने हराया, अरबों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, और हम अंग्रेज, हमने हराया। आप कभी जीते नहीं। आपका उद्धार करने के लिए गॉड ने हमें भेजा है। अंग्रेजों का राज माने भगवान का वरदान है, ऐसा मानो, ऐसा वो कहते थे। सरकार उनकी थी, स्कूलों में कॉलेज में क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना उनके हाथ में था। तो भारत के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ थे, दैदीप्यमान पर्व थे, वो सारे उन्होंने डिलीट कर दिए। और जो लड़ाई हम हारे, उसका ही वर्णन हमारे माथे पर उन्होंने मारा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कैसा दुष्प्रचार होता है। अंग्रेजों ने कहा आर्य बाहर से आए। उन्होंने कहा आप हमें कहते हो भारत से चले जाओ। अरे भाई, आप आर्य, आप 3000 साल पहले आए, मुसलमान 1000 साल पहले आए, और हम अंग्रेज, हम 100-150 साल पहले बाहर से। हम तीनों बहिरागत है, तो एक बहिरागत दूसरे को कैसे कह सकता है आप बाहर जाओ? क्योंकि आप भी तो बाहर के हैं। अभी दुनिया के आधे से ज्यादा विद्वानों ने कहा है कि आर्य बाहर से आए, झूठ है। बाकी तो दुनिया की बात छोड़ो, अपने देश का अगर हम विचार करेंगे तो पहले पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और एक बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसके कारण आपको धक्का लग सकता है। 100 साल पहले अपने देश में डंक की चोट पर सीना तान कर उच्चारों से आर्य बाहर से आए इस सिद्धांत का पुरजोर विरोध करने वाले महापुरुष माने पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने दसों ने सैकड़ों बार कहा और सैकड़ों बार लिखा कि आर्य बाहर से आए, ये 100% झूठ है। उन्होंने कहा आर्य अनार्य संघर्ष, आर्य द्रविड़ संघर्ष, ये हिंदू समाज में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने ये झूठ का पुलिंदा हमारे माथे पर मारा है। अंबेडकर जी का वाक्य है, अगर इस देश के ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर आर्य है तो इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति भी आर्य है। दुर्भाग्य हमारे देश का ऐसा है कि अंग्रेज वही रट लगा रहे थे, और स्वातंत्र प्राप्ति के बाद इतने साल हो गए, आज भी हमारे यहां वही रट लगाई जा रही है। जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखा पुस्तकों में, 47 में हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है।
अभी नई शिक्षा नीति आ गई और इस साल सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में हिंदुस्तान के नया पाठ्यक्रम आएगा, उसमें कुछ बदल होने वाला है। ये हो गया होगा, अभी पुस्तकें आई होगी। विश्व हिंदू परिषद ने तय किया, ये जो हमारे पराक्रम के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। तो सालार मसूद माने मोहम्मद गजनी को, भांजे को जिसने परास्त किया, वो महाराजा सुहेल लोगों को मालूम होना चाहिए। पोर्तुगीजों को हराने वाली रानी अबक का चौथा सबको मालूम होनी चाहिए। तैमूर लंग का पीछा करते हुए उसको परास्त करने वाले रामपाली गुर्जर सबको मालूम होनी चाहिए। तमिलनाडु में अंग्रेजों को हराने वाली रानी वेलु नचियार सबको मालूम होनी चाहिए। और उसी कड़ी में मोहम्मद गौरी को पराभव का पहला घूंट पिलाने वाली रानी नायका देवी, उसकी भी जानकारी सभी को मिलनी चाहिए। उसके लिए इस कार्यक्रम की योजना हमने की है। मुझे इसलिए आनंद हो रहा है, हम कभी कभी मजाक में कहते हैं कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वास्तविक एक कार्यक्रम पिछले साल ही होने वाला था, लेकिन कुछ न कुछ कारण हो गया, जो कुछ हो गया, लेकिन आज तो कार्यक्रम हो ही रहा है। देखो, इस अंग्रेजों के दुष्प्रचार का और सारे चीजें छिपाने का परिणाम क्या होता है। मैं स्वयं 13-14 साल से गुजरात में अनेक लोगों के पास इस विषय को लेकर चर्चा की, लेकिन रानी नायकी देवी का जानकारी नहीं किसी को। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में हर भाषण में मैं इनका उल्लेख करता था, तो लोग मुझे पूछते थे आपको ये जानकारी कहां से मिली। तो कुछ पुस्तकों का रेफरेंस भी मैंने दिया। वास्तविक डाउसन ने जो सारे फारसी इतिहासकार हो गए, बखरकार, उन्होंने जो फारसी बखरे लिखी, उसका सभी का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उसके 3 वॉल्यूम्स है। उस वॉल्यूम्स में रानी नायकी देवी का उल्लेख है। उसका आधार लेकर हमारे डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा जी ने लगभग 15-20 साल पहले एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, अभी उसका हिंदी में भी अनुवाद हो गया है। वो सबसे पहले मैंने पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आ गया, ये ऐसी सारी बातें हैं। तो हमने सब लगभग चर्चा की। और अपने यहां 14वीं शती में एक बहुत बड़े जैन विद्वान हो गए मेरु तुंग जी, जिनका नाम, उनका एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। उस ग्रंथ में रानी नायकी देवी के सारे चरित्र का और मोहम्मद गौरी के साथ उसकी जो लड़ाई और उसके जो विजय होगी उसका सारा वर्णन है। चालुक्य राजगणारण के राजकवि सोमेश्वर जी, उन्होंने भी उसका उल्लेख किया है। और 13वीं शती में जो फारसी लेखक हो गए सिराज सिराज, उन्होंने भी अपने बखर में इस सारे युद्ध का वर्णन किया है। उसके बाद फरिश्ता ने भी किया है, बदायूं ने भी किया है। तो सबूत तो बहुत है, लेकिन अंग्रेजों ने छिपा कर रखे थे, इसलिए वो मालूम नहीं थे। अभी वो मालूम हो रहे हैं और सारी जनता के सामने वो विषय आना चाहिए, इसलिए अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं, क्योंकि आप सब पाटन के वासी हैं, पाटन का अपने देश के इतिहास में एक जबरदस्त ऐतिहासिक महत्व है। अमेरिकन इतिहासकार टेट्रियस चांड्रल ने कहा है कि 12वीं 13वीं शती में दुनिया के जितने बड़े शहर थे उसमें 10वां बड़ा शहर ये पाटन था। पाटन का काफी बड़ा महत्व है। रानी के वाव के कारण तो पाटन सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी पाटन की प्रसिद्धि नायका देवी के कारण और भी बढ़ने वाली है। तो यहां सोलंकी माने चालुक्य राज्य करते थे। सिद्धराज सोलंकी जी की जानकारी हम सभी को है ही। रानी नायका देवी वैसे रहने वाली गोवा की। गोवा में जो कदम्ब राजघराना था उनका नाम था शिवकांत परमारदीन, उनकी वो बेटी राजकन्या थी। बचपन में ही युद्ध कला में प्रवीण हो गई थी। घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, तीरंदाजी माने धनुष्य बाण का उपयोग करना, सब चीजें में वो एक्सपर्ट हो गई थी। राजकाज की भी प्राथमिक जानकारी उनके पिता ने उनको दी थी। उनकी शादी, उनका विवाह सिद्धराज जयसिंह जी का पोता और कुमार कुल का बेटा अजयपाल सोलंकी के साथ हो गई। 1171 में 1171 में अजयपाल जी अपने पाटन के राजा बन गए।
लेकिन दुर्भाग्य से 1175 में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई। बहुत युवक थे, 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी, उसका नाम था कुर्मा देवी। जो बड़ा बेटा था उसका नाम था मुलराज द्वितीय, और जो छोटा बेटा था उसका नाम था भीमदेव द्वितीय। अभी वो उनकी मृत्यु के बाद अभी राजा कौन बनेगा? तो सारे दरबारी मंत्री और जितने सामंत थे उन्होंने कहा, वो रानी की योग्यता जानते थे, तो उन्होंने कहा कि रानी मां, आपको ही इस राजकारभार सब बताना चाहिए, आप ही गद्दी पर बैठ जाइए। क्योंकि आज के राजघराने में सबसे योग्य, जिसको युद्ध कला भी मालूम है, राजनीति भी जिसको आती है, कूटनीति में भी जो एक्सपर्ट है, ऐसी आप हो तो आपने ही राजा बनकर काम करना चाहिए। रानी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा कि अपने घर राजघराने की, अपने खानदान की ये पद्धति नहीं है। मैं जानती हूं कि मुलराज अबोध बालक है, लेकिन वो युवराज है, और वो बड़ा होने के कारण राजा वो ही बन सकता है, वो ही राजा बनेगा। मैं उसकी प्रतिनिधि बनकर, राजमाता बनकर सारा राजकाज देखूंगी जब तक वो बड़ा होता है तब तक। और फिर रानी नायकी देवी का नाम हो गया राजमाता नायिका देवी। सारा कारोबार जो है वो सब शुरू हो गया। उस समय का जो अपना चालुक्यों का जो राज्य था, वो अपना गुजरात का कुछ हिस्सा और सिरोही, जालौर और भी कुछ जिले हैं, ऐसे राजस्थान का कुछ हिस्सा मिलकर चालुक्यों का, माने सोलंकी वंश का या डायनास्टी का राज्य था। अत्यंत संपन्न था धन धान्य से, सारी प्रजा सुखी थी। लेकिन उस समय विश्व के पटल पर और एक अनहोनी घटना घट रही थी। हम सब जानते हैं मोहम्मद गजनी जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा 1026 में, गुजरात के लोग तो भूल नहीं सकते। मोहम्मद गजनी के बाद उसका भांजा सालार मसूद 1.5 लाख की सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, परंतु उस समय उसने कहा कि मेरे मामा ने सोमनाथ और मथुरा लूटी, मैं अयोध्या और काशी का मंदिर ध्वस्त करूंगा। इसलिए वो पूर्व की तरफ गया। परंतु उस समय श्रावस्ती बहिराज का राजा था महाराजा सुहेल देव। उसने 21 राजाओं को एकत्रित करके एक जबरदस्त लड़ाई हो गई 1034 में, और जिस लड़ाई में सालार मसूद, उसका बाप सालार साहू सहित 90% ये तुर्कों की जो सेना है वो अल्लाह के पास चली गई। गत 1400 साल के हिंदू मुसलमान संघर्ष में वो हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय थी और मुसलमानों की सबसे बुरी हार थी। लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। मैं थोड़ा सा इस मौके का लाभ लेकर बताना चाहता हूं। पहले संघ ने और बाद में विश्व हिंदू परिषद ने विषय उठाया। हमने सारे उत्तर प्रदेश में अनेक जगह कार्यक्रम किया, और आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वैसे ही 5 साल पहले लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया था। मैं वक्ता था और वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो अध्यक्ष थे, और वो सुहेल देव जी के सर्वमय कार्यक्रम था, और हमने मांग की कि उनका स्मारक बनना चाहिए। आज उनका स्मारक बनकर तैयार हो गया। ये भी स्मारक बनने वाला है, मैं आज ही बताता हूं निश्चित रूप से। पाटनी प्रभुता, पाटनी प्रभुता। उस लड़ाई का इतना जबरदस्त परिणाम हुआ कि उसके बाद 140 साल तक किसी भी विदेशी आक्रांतों की हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। गजनी में सत्ता बदल हो गया, और गियासुद्दीन घोरी और ये मोहम्मद घोरी, उसका शाहबुद्दीन घोरी भी कहते हैं, ये सत्ता पर आए। और मोहम्मद घोरी ने 1175 में मुल्तान जीता, जो आज पाकिस्तान में, उस समय वो भारत का हिस्सा था। और बाद में भारत पर आक्रमण करने का कि गजनी, उसका आदर्श था मोहम्मद गजनी कि मैं भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करूंगा। तो मौके की तलाश था, अपने लोगों को जासूसों के द्वारा वो जानकारी एकत्रित कर रहा था कि कहां करना, कैसे करना। तब उसके पास समाचार आ गया कि गुजरात में चालुक्य का राजा है, वो अबोध बालक है, और उसकी मां जो है राजमाता नायिका देवी, वो राज्यकारभार संभाल रही है, लेकिन वो एक विधवा है, अबला है, महिला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा यही तो भारत की एक दुर्बल कड़ी है, ऐसा मुझे लगता है।
तो ये चालुक्यों का राज्य है वो हम सहज आराम से जीत सकते हैं और उसके द्वारा सारे भारत पर आक्रमण करने की हम योजना बनाते हैं। इस पद्धति का दिवा स्वप्न वो सब लोग देख रहे थे। और फिर मुल्तान से वो आगे आया, आज के पाकिस्तान की पंजाब के दक्षिण की तरफ एक उच्च नाम का एरिया है, वहां आ गया। उसके बाद सिंध और राजस्थान का रेगिस्तान पार करके वो चालुक्यों की सीमा के पास पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद उसने चालुक्य के राजघराने में राजमाता के पास अपना दूध भेजा, एक पत्र देकर। उस पत्र में जो लिखा गया था कि मैं यहां आया हूं, आक्रमण करना चाहता हूं, लेकिन मैं आक्रमण नहीं करूंगा अगर आप मेरी शर्त मान्य करोगे। शर्तें क्या रखी कि रानी, राजा, उसके बेटे ये मुझे हवाले मेरे पास सौंप दो। आपकी सारी धन दौलत और यहां की सारी महिलाएं, कन्याएं, ये भी मुझे मेरे पास दे दो। फिर मैं आपके यहां आक्रमण नहीं करूंगा और आप सभी पर रहम करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं। इस पद्धति का पत्र लेकर उसका दूत आ गया। दरबार में खलबली मची कि कैसा करना। रानी जानती थी, रानी का जो मैंने अभी राजमाता कहता हूं, राजमाता जानती थी, राजमाता का जो गुप्तचर दल था उसका नाम था शार्दंग। वो अत्यंत कुशल थे। उन्होंने सारी जानकारी लाई थी कि इसका क्या मंसूबा है, इसकी कितनी सेना है। उन्होंने कहा उसकी विशाल सेना है और उनके पास आधुनिक शस्त्र है, टेक्निक भी मॉडर्न है, आधुनिक है। हमारा उनका मुकाबला हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे से कई गुना बड़े हैं। तो क्या करना। तो रानी ने विचार किया कि आमने सामने लड़ाई में तो हम हार जाएंगे, तो कूटनीति से ही उसको परास्त करना चाहिए। शठम प्रति शाठम, टीट फॉर टैट। भगवान कृष्ण हमारा आदर्श है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि जब अधर्मी सामने आता है तो धर्म युद्ध का विचार नहीं करना है, अधर्मी को मारना है तो किसी भी साधन का विचार न करते आपद धर्म इस नाते से जो साधन मिलता है उस साधन से उसको मारना है। इसके लिए तो उसने अर्जुन को भगवत गीता कही और उसके ही कारण भीष्माचार्य कैसे सरपंजर पर आ गए, द्रोणाचार्य कैसे उनको मारे गए और कर्ण भी कैसे मारा गया। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो महाभारत के युद्ध का रिजल्ट दूसरा आता। तो भगवान ने सारे पांडवों को कहा आपद धर्म इस नाते से, जो कभी चीजें नहीं करते अधर्म इस नाते से, आपद धर्म जब आता है तो वो करने ही चाहिए। जो अधर्मी है उसको मारना यही कर्तव्य है। उस समय बाय हुक बाय क्रुक, इस समय ये योग्य है अयोग्य विचार नहीं करना होता है। ये बात उन्होंने कही। रानी ने भगवान कृष्ण की नीति का अवलंब किया। यही बात तो चाणक्य ने भी कही। उन्होंने कहा हम दुर्बल हैं तो इसलिए छल करके, कपट करके ही उसको अपने को मारना पड़ेगा। तो रानी ने कहा अपने सेनापति को और अपने अन्य मंत्रियों को हम उत्तर भेजते हैं। और रानी ने उसके दूत के पास अपना उत्तर भेजा और रानी ने उसमें लिखा कि आपकी सारी शर्तें हमें मान्य है, आपकी सारी शर्तें हमें मान्य है। तो उसका जो आया था दूत, मैसेंजर, वो अपना मैसेज मैंने रानी का पत्र लेकर मोहम्मद गोरी के पास चला गया। पहुंचा होगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जो कुछ हो। वो पत्र पढ़ने के बाद मोहम्मद घोरी एकदम खुश। उसको लगा कि चलो बिना लड़ते ही रानी ने हथियार डाल दिए हैं। मुझे लग ही रहा था कि ये अबला है, महिला है, विधवा है, वो क्या लड़ने वाले अपने साथ। और वो बालक तो, राजा तो एकदम बालक है और इनमें कोई ज्यादा सेना भी नहीं है, मेरी इतनी विशाल सेना है। तो जश्न मनाने की, आनंद उत्सव मनाने की तैयारियां वहां शुरू हो गई। या रानी ने अपनी सारी योजना बनाना शुरू कर दिया। जब रानी के सारे जासूसों ने 15 दिन पहले ही खबर लाई थी कि मोहम्मद गोरी आने वाला है, उसी समय आजू बाजू के सारे अड़ोस पड़ोस के राजाओं को रानी ने पत्र भेजे थे कि संकट आने वाला है, गिद्ध आने वाला है हम सभी को खाने के लिए, उसको परास्त करना है। मैं उसके लिए आगे आऊंगी लेकिन आपकी हमें मदद चाहिए। तो उस समय जालोर के कीर्तिमान चौहान थे, या नाडोल के कल्याणदेव चौहान थे, या अरबुदा के परमार थे, धारावर्ष परमार। इन 3 राजाओं ने एकदम पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हम आपको सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है।
रानी ने अपने प्रधानमंत्री और सेनापति को कहा कि अपनी सारी माता बहनें और प्रजाजनों को लेकर अपने राज्य से जो एक गुप्त मार्ग जाता है नाड़ोल के राज्य में कल्लंडेव के यहाँ, वहां से अभी सारी प्रजा को लेकर जाओ, सारी बहनों को लेकर जाओ। फिर उन्होंने सेनापति और अन्य सभी लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि 200 अत्यंत शूर इस पद्धति के सैनिक चाहिए सेनापति जी, कि जो जहां मोहम्मद गोरी की छावनी पड़ी है, वो छावनी है राजस्थान और गुजरात के, आज के राजस्थान और गुजरात के बाउंड्री पर अबू पर्वत के तलहटी में एक गदरा घट्टा नाम का एरिया है, कुछ लोग गडरार घट्टा भी कहते हैं, और वहां एक कयादरा नाम का गांव है, कुछ लोग कहते हैं उसको कसवदरा, अभी वो अलग अलग है, पुराने नाम है। तो वहां वो आ गया है, तो वहां उसके छावनी में घुसकर अपना ड्रेस बदलकर गुप्त तरीके से उनको वहां रहना है। कैसे क्या करना वो मैं बताती हूँ बाद में। दूसरा, उन्होंने सेनापति को कहा कि अपनी 25,000 की सेना है वो कई टुकड़े में अपने को बांटनी है। अबू पर्वत का जो पहाड़ी एरिया है जहां मोहम्मद की छावनी है, उसके सभी बाजू में पर्वत में छिपकर उसको अपने को घेरना है। तो छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर अलग अलग जगह उनको भेजो, वो भी व्यवस्था होगी। फिर तीसरी बात रानी ने कही कि मैं कुछ सैनिकों के साथ लेकर मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मोहम्मद साहब को मैंने कहा है कि हम आपको स्वाधीन होने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो मुझे दिखावा करना ही है, और आप मेरे पीछे चलेंगे थोड़ा सा दूरी रखकर। अपनी गज सेना, अश्व सेना और अन्य जो पदाति है वो आपके साथ रहेंगे, और कब किसने कब करना क्या करना ये सारी रणनीति तय हो गई, कैसे करना क्या करना। सारे लोग अपने अपने जगह पर रवाना हो गए। वहां मोहम्मद गोरी तो एकदम जश्न मना रहा था, वो बेसावध हो गया था, उसकी सारी सेना सुस्त हो गई थी कि चलो हम तो जीत ही गए। इस पद्धति की बात सब उसकी इसमें अभी चल रही थी, और जैसा जो तय था उस तय के दिन में रानी अपने घोड़े पर सवार हो गई, क्योंकि उसके पहले राजा मुलराज को उसने अपने पीठ पर कसकर बांध लिया, और वो घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद साहब को जहां उसकी छावनी थी उस छावनी के पास जाने लगी। अपने पाटन से मैं जानता हूं कयादरा लगभग 100-125 किलोमीटर होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ हो गया तो वो जाने लगे। मोहम्मद साहब के जासूसों ने खबर आई कि रानी आ रही है, उनको ये नहीं पता था कि रानी ने इतने अलग अलग जगह अपने सैनिकों को घेर कर रखा है, उससे वो अनभिज्ञ था। मोहम्मद ये भी अनभिज्ञ था कि हिंदुस्तान की वीरांगनाएं कितनी पराक्रमी होती है। अगर मन में आया तो वो रानी दुर्गा या माँ दुर्गा या माँ काली माता जैसी बनकर वो दुश्मनों को मारती है, इससे वो अनभिज्ञ था। अभी उसका ये अनुभव उसको आने वाला था 2-3 दिन में, वो भूल कर बैठा था। उसने रानी माँ को कहता था कि ये ताबला क्या करेगी, ये इसकी बहुत बड़ी भूल हुई कि जिसके कारण हमें लाभ हो गया। जैसे वो जाने लगे मोहम्मद साहब के छावनी के पास, मोहम्मद गोरी के पास जब आ गए तो मोहम्मद गोरी के कुछ लोगों ने कहा कि रानी आ रही है, वो भी अपनी छावनी से बाहर आ गया। लेकिन अचानक एकदम रानी की जो कारवां जो था वो एकदम रास्ते में रुक गया, वहां से कुछ ही दूरी पर उनकी छावनी थी। मोहम्मद गोरी के सैनिकों को समझ में नहीं आया, और मोहम्मद गोरी को भी समझ में आया कि ये रुके क्यों। वो चर्चा कर रहा था क्यों रुके, ये बात चल रही थी। उसी समय उसके छावनी से एकदम हर हर महादेव का घोष हो गया, और जो रानी ने 2 दिन पहले अपने 200 लोगों को वेश बदलकर उसके छावनी में भेजा था, उन्होंने सभी ने अपनी तलवार लेकर बेसावध रहे मोहम्मद घोरी के सेना पर हमला किया। उसी समय जैसा वो आवाज आ गई तो चारों बाजू में पहाड़ों पर छिपकर जो अनेक 10-12 टुकड़ियों में लोग थे सैनिक, वो सारे सैनिकों ने उसके छावनी पर हमला किया। और उसी समय बिजली की गति से जो रानी के साथ 200-300 सैनिक थे घोड़सवार, वो उन्होंने एकदम जबरदस्त आक्रमण किया। पीछे से दूसरी सेना आ ही रही थी, गज सेना, अश्व सेना, वो भी आ गए। मोहम्मद कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, वो उसको सब क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन विचार करने का समय नहीं था। आनंद फानन में उसने सेना एकत्रित की और युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन जब इस पद्धति की बात होती है तो आक्रमण करने वाला ही पहले विजय होता है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। कल T20 में भारत जीता तो आपने देखा है कि जब T20 में जब फ्रंट फुट पर लोग खेलते हैं, बैकफुट पर खेलने से विजय नहीं मिलती T20 में। वो क्रिकेट मैंने टेस्ट मैच में मिलती है, वो 5 दिन चलती है। हाँ, लेकिन 50-50 में या T20 में
फ्रंट फुट पर खेलने वाला ही बैट्समैन चाहिए तो ही जीत सकते हैं। तो ये तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस इस नाते से रानी ने आक्रमण किया और सारी अफरा तफरी मोहम्मद के सेना में ये मच गई और गाजर मुरी जैसे उसके सैनिक के कटने लगे। रानी जबरदस्त पराक्रमी थी। मां दुर्गा का संचार उसके शरीर में हो गया था। इस पद्धति का पराक्रम वो कर रही थी। मोहम्मद के चारों ओर जो उसके सैनिक थे उनकी सुरक्षा के लिए रहते थे, उनको सभी को मारते मारते, क्योंकि वो घोड़ी को देख रही थी कि वो कहाँ है जो बता रहा है कि आप हमारे पास सब सौंप दो, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, पहले उसको ही मारना है। तो उसके अड़ोस पड़ोस के सैनिकों को जबरदस्त मारकाट करके गिराकर जहां मोहम्मद अंदर घेरे में था वहां रानी पहुंच गई और इतना जबरदस्त आक्रमण उसने मोहम्मद घोरी पर किया कि घोड़े पर बैठा हुआ मोहम्मद घोरी रानी की तलवार के वार से बेहोश होकर नीचे गिर गया। लेकिन उसी समय अपना राजा है तो उसके साथ सैनिक तो होते हैं, तो उसी क्षण में एकदम जबरदस्त पैमाने पर घोरी के सैनिक वहां आ गए, इसलिए और एक तलवार का वार करके उसका खात्मा करने का चांस नहीं मिला और बेहोश हुए मोहम्मद को उठाकर तुर्की भागने लगे। सारे भागने लगे। जो इनकी गजर सेना थी वो गजर सेना आगे आने लगी तो उसके सामने उनको कैसा उत्तर देना ये कुछ भी वो नहीं जानते थे और वो युद्ध हम बहुत अच्छे ढंग से जीत गए। ये घटना है 1178 की। ये घटना है 1178। बाद में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, बाद में उसने लाहौर जीता, वो सियालकोट जीता, वो अलग बात है। परंतु एक वीरांगना ने मोहम्मद घोरी जैसा, मोहम्मद घोरी अत्यंत पराक्रमी था, भले अपना शत्रु, अत्यंत पराक्रमी था, उत्कृष्ट सेनापति था, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान को जो हरा सकता है वो कोई आयरा गिरा तो हो ही नहीं सकता कि इस पद्धति के सेनापति को, इस पद्धति के राजा को ऐसा अत्यंत जबरदस्त बुरी तरह से हराना, ये भी उससे भी जो शेर को सवा शेर हम जैसा कहते हैं उससे भी ज्यादा योग्य सेनापति ही कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि राजमाता उस समय एक जबरदस्त उत्कृष्ट सेनापति थी और उसने उन्होंने अपने रणनीति का एक जबरदस्त अच्छी तरह से परिचय सारे लोगों के सामने दिखाया, कूटनीति का अवलंब किया और मोहम्मद घोरी को परास्त किया। सारी सेना उसको भाग गई। अपने हिंदुओं में एक थोड़ी सी कमी है, धर्म युद्ध हम करते हैं। अगर कोई राजा मैंने शत्रु जो राजा ने माफ करना, अगर शत्रु बेहोश हो गया, निशस्त्र हो गया तो हम धर्म युद्ध करने वाले हिंदू मारते नहीं, और कोई सेना परास्त होने का भागने लगे तो हम उसका पीछा करते नहीं, जो कुछ हो। लेकिन ऐतिहासिक विजय हो गई। इस लड़ाई का परिणाम ऐसा हुआ कि उसके बाद मोहम्मद घोरी ने कभी भी गुजरात पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। 100 साल बाद में गुजरात पर आक्रमण नहीं हुआ। गुजरात में बाद में आक्रमण हुआ 1299 में, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जब राजा करणदेव कर्णावती के राजा थे उस समय। तो तब तक गुजरात का स्वातंत्र सूर्य वैसा ही मध्यान्ह जैसा इस पद से तब तक इस नाते से रहा था। तो ये एक अत्यंत गौरव का विषय है। इसकी जानकारी सभी लोगों को मिलनी चाहिए। आज हम कार्यक्रम उस नाते से कर रहे हैं। ये पराक्रम जिस एक महिला ने इतना जबरदस्त पैमाने पर एक वीरांगना ने किया, उसकी जानकारी सभी को चाहिए। हमारी सारी माता बहनों की ये आइकॉन है, आदर्श है। मैं आइकॉन शब्द पर जानबूझ करके नहीं कि युवतियों को आइकॉन समझ में आता है, आदर्श समझ में नहीं आता। उनके आइकॉन है। जैसे रानी झांसी लक्ष्मीबाई है, वैसी ही हमारी रानी नायिका देवी भी है, जिसने इतना जबरदस्त पराक्रम किया। उनको आदर्श कर उस पद्धति का शौर्य, उस पद्धति का पराक्रम, उस पद्धति का आत्मविश्वास और उस पद्धति की हिम्मत हर एक व्यक्ति में, हर एक महिला में, हर एक लड़के में निर्माण होनी चाहिए। ऐसे जो वीर पुरुष होते हैं किसी भी देश में या समाज में, उनकी जीवनी क्यों सामने रखनी चाहिए? पूर्वजों के पराक्रम से प्रेरणा मिलती है, और पूर्वजों के पराक्रम से जब प्रेरणा मिलती है तो मैं भी इसी पति से पराक्रम करूंगा या करूंगी, ऐसा भावना व्यक्तियों में, प्रजा में निर्माण होता है। और जो देश ऐसे वीरों का, वीरांगनाओं का स्मरण करता है, उनका गौरव करता है, वही देश आगे बढ़ता है।
और इस पद्धति का एक भाव सारे हिंदू समाज में निर्माण होना चाहिए। इसलिए अपना ये जो छिपा हुआ पराक्रम और संघर्ष का इतिहास सारे लोगों के सामने लाकर उनमें पराक्रम की और हिम्मत की भावना निर्माण करना, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद काम करती है। इसके लिए आज का कार्यक्रम है। हम जब पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री को मिलने के लिए गए थे, तब हमने ये सारी चर्चा भी की और कुछ मांगे उनके सम्मुख रखी। वो मैं फिर से जरा दोहराता हूं। हमसे मैंने पहली मांग की कि पाटन में इस ऐतिहासिक विजय का स्मारक बनना चाहिए। पाटन के साथ साथ गुजरात की राजधानी कर्णावती माने अहमदाबाद है, तो वहां भी राजमाता नायका देवी का मूर्ति, पुतला, स्टैचू ये बनना चाहिए। तीसरी बात हमने कही कि राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री पर वो कयादारा गांव है, अभी उसका नाम थोड़ा सा अलग है, तो राजस्थान और गुजरात दोनों सरकारों ने आपस में बातचीत करनी चाहिए और जहां लड़ाई हो गई उस स्पॉट पर, उस जगह पर भी इस ऐतिहासिक विजय का स्मारक बनना चाहिए। वो गुजरात की थी, चालुक्य राजघराना जो खानदान है वो गुजरात का है, इसलिए गुजरात की राज्य सरकार ने उसमें थोड़ा सा अग्रणी भूमिका लेनी चाहिए। चौथी हमारी जो मांग है कि गुजरात के स्कूल के इतिहास के पाठ्यक्रमों में राजमाता नायकी देवी का चित्र, उसकी सारी जानकारी इस लड़ाई की, ये वो आनी चाहिए। और पांचवी हमारी मांग है, वैसे सेना में अपना गुजरात थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हमारा कहना है कि कन्याओं में वीर वृत्ति निर्माण होनी चाहिए। इसलिए गुजरात में लड़कियों के लिए भी सैनिक स्कूल की आवश्यकता है और वो जो लड़कियों का सैनिक स्कूल बनेगा वो रानी नायकी देवी के नाम से बनना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर हो जाएगी तो हमेशा के लिए सभी पीढ़ियों को उसका एक जो है वो स्मरण रहेगा और प्रेरणा मिलेगी। मैं आपके और 5 मिनट लेने वाला हूं। आप कहेंगे अभी आपका और क्या भाषण रह गया। मैं इसलिए ले रहा हूं, रानी नायकी देवी जैसा ही पराक्रम उसके बेटी ने भी किया है, जिसकी जानकारी नहीं है। उनकी बेटी का नाम है कुरमा देवी। मैं संक्षेप में बताऊं, उसका ज्यादा डिटेल्स में वर्णन नहीं करूंगा। ये कुरमा देवी की शादी 1179 में, 1179 में, उस समय चित्तौड़ के जो रावल थे समर सिंह जी, उनके साथ हुई। समर सिंह जी को पहली पत्नी थी, उसका नाम था पृथ्वीबाई। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की छोटी बहन थी। ये उसकी दूसरी पत्नी थी कुरमा देवी। वो पृथ्वीबाई को एक बेटा था, उसका नाम था कल्याण राय। कुरमा देवी को भी एक बेटा हो गया, उसका नाम था, माफ करना, तो ये वहां गए और उस समय उसका नाम था कल्याण सिंह। तो मैं जो बात कर रहा था आपको, तो जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई तरावड़ी में, उस लड़ाई में हम हार गए। पृथ्वीराज चौहान जी उनको गिरफ्तार लेके गए, चलो वो इस इतिहास में नहीं जाता हूं, लेकिन उस लड़ाई में कुरमा देवी के पति और उनका पृथ्वी रानी का बेटा, ये दोनों का बलिदान हो गया। तो पृथ्वीबाई तो सती गई, लेकिन कुरमा देवी सती नहीं गई। वो सती इसलिए नहीं गई कि उसने कहा कि मेरा जो बेटा है वो बेटा भी छोटा है, और वो छोटा है तो उस बेटे का राज्याभिषेक हो गया। तो लोगों ने कहा आप सती मत जाइए। तो जैसे आपकी मां का हो गया वैसे ही यहां भी है, तो आप बड़ी हैं, मां ने आपको भी आप जैसा ही तैयार किया है, तो इसलिए आप अभी राजकाज संभालो। राजकाज वो संभालने लगे, लेकिन उसके मन में बदले की भावना थी कि जिस मोहम्मद गोरे ने हमारे यहाँ सबको मारा, मेरे पति को मारा, मेरे सापत्न पुत्र को मारा, तो उसका बदला मुझे लेना है। आड़ोस पड़ोस के राजाओं पर भी उसने वो भावना निर्माण की, एक सेना तैयार की। और कहा मोहम्मद गोरी, तब तक मोहम्मद गोरी तो अफगानिस्तान वापस गया था और उसने अपना सारा यहाँ दिल्ली की जो सत्ता थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। उत्तर की तरफ जाते समय कुतुबुद्दीन ऐबक भी फिर से आक्रमण करने के लिए आ रहा था और 1194-95 में दोनों सेनाओं की आपस में लड़ाई हो गई। हिस्ट्री रिपीट्स, सब ऐसा ही हो गया था और कुरमा देवी ने जबरदस्त पराक्रम करके हुए कुतुबुद्दीन ऐबक पर इतने जबरदस्त वार किए कि वो रणांगण में बेहोश हो गया। सबको लगा कि वो मर गया है और हम युद्ध जीत गए हैं,
ऐबक की सेना भी भाग गई, ये भी वापस आ गए, लेकिन ऐबक मरा नहीं था। उसके सैनिक लेकर गए, वो अनेक दिन बीमार रहा, लेकिन बाद में ठीक हो गया। रानी जब वापस आ गई तो भाई पति तो गया है, उसी समय सती जाना था, उस समय नहीं जा पाई, तो उस युद्ध के 3 साल के बाद वो सती गई। लेकिन ऐबक तो जिंदा रहा, और ऐबक ने बाद में कुछ सालों के बाद फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मैंने कुर्मा देवी का उल्लेख इसलिए किया कि रानी नायका देवी ये चलो गोवा की राजकन्या, लेकिन कुर्मा देवी तो गुजरात की राजकन्या थी, और उसने भी इसी पद्धति का पराक्रम किया है, हमें मालूम होना चाहिए। और मैं एक बात आता बताऊं 2 मिनट में। उसका जो बेटा था, तो उसका एक बेटा था, उसका नाम था करण सिंह। वो करण सिंह था उसका बेटा, वो मुझे कुर्मा देवी का बेटा करण सिंह, वो गद्दी पर बैठ गया। वो गद्दी पर बैठने के बाद वो बड़ा हो गया। ऐबक के एक के बाद एक आक्रमण शुरू हो गए। ऐबक ने जब आक्रमण किया, तब जो दूसरी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में करण सिंह परास्त हो गया। ऐबक ने उसको हराया और उसको बंदी बनाकर वो लाहौर लेके गया। बंदीवास में जब था, तब करण सिंह ने भागने की कोशिश की, और भागने की कोशिश करने के बाद ये जबरदस्त क्रुद्ध हो गया ऐबक, और उसने कहा इसका सर कलम करो, माने शिरच्छेद करो। करण सिंह के पास एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था शुभ्रक। वो अत्यंत प्रसिद्ध घोड़ा था। उस घोड़े के पैरों पे जैसे महिलाएं पायल पहनती है या अपने हाथ में बैंगन पहनती है, वैसे उसके आगे के खुरों में बैंगन रहते थे और पीछे वाले खुरों में पायल रहते थे। गले में भी हार वगैरह जैसा नेकलेस वगैरह होता है, इस पद्धति से पहना जाता था। वो अत्यंत भाग्यशाली घोड़ा है, इस पद्धति की उसको मान्यता थी। तो वो घोड़ा भी ऐबक लेकर गया था। ऐबक को वो घोड़ा इतना पसंद आया, वो उस घोड़े पर ही सवारी करता था। तो जब उसने आज्ञा दी कि इसका सर कलम करना चाहिए, लेकिन ऐबक ने दूसरी आज्ञा की कि करण सिंह का सर कलम करेंगे, और सर कलम होने के बाद उसका जो सिर है, उस सिर से हम घोड़े पर बैठकर पोलो खेलेंगे। पोलो में तो बॉल होता है, और घोड़े पर कर जैसा हॉकी होती है ना, उस पद्धति का होता है, अत्यंत क्रूर पद्धति से। तो ये सब करने के लिए आए, वो मैदान पर उसको लेकर आए। ऐबक भी शुभ्रक पर बैठकर आ गया, और उस समय शुभ्रक ने देखा कि अपना मालिक जो है वो सामने जंजीरों में बद्ध यहाँ खड़ा है। अभी जब सर कर्म करने की बात आ गई, तो उसकी जंजीरें खोल दी, करण सिंह की सारी जंजीरें खोल दी, और वो जो मारने वाला था वो तलवार लेकर आगे बढ़ने लगा। और उस समय शुभ्रक एकदम बेकाबू हो गया, इतना जोर से वो उछला कि उसके ऊपर बैठा हुआ जो ऐबक है वो घोड़े के नीचे गिर गया। जैसा वो नीचे गिर गया, तो अपने शक्तिशाली खुरों के आधार पर, ये जो लड़ने वाले जो घोड़े होते हैं ना, उनका जो खुर होता है उसमें लोहे की नालियां होती है, उसमें खेले होते हैं। तो अपने वो शक्तिशाली खुरों के आधार पर उसके सिर पर और छाती पर इतने जबरदस्त उसने प्रहार किए, वो सारा इन सेकंडों में हो गया कि जो ऐबक जो था वो बेहोश हो गया, बाद में वो मर भी गया। तो इससे एकदम सेना में एकदम खलबली मची। लड़ने वाले जो थे, मारने वाले थे, वो एकदम ऐबक के पास गए। उस मौके का लाभ उठाकर घोड़ा जो है वो एकदम अपने मालिक के पास, करण सिंह के पास गया। तो सब अफरा तफरी देखकर करण सिंह एकदम उस घोड़े पर सवार हो गया। जैसे वो सवार हो गया, तो घोड़ा एकदम उछला और जोर से दौड़ने लगा। कहाँ लाहौर है और कहाँ राजस्थान का चित्तौड़ है, कितने दिन लगे होंगे मालूम नहीं है, परंतु वो आ गया। और जब अपने राजधानी में आ गया, तब करण सिंह घोड़े से नीचे उतरा और अपनी घोड़े की पीठ थपाते हुए उसने उसके पीठ पर हाथ रखा, तो वो मूर्ति जैसा हो गया था। और जैसे उसने हाथ रखा, तो तुरंत नीचे गिर गया, मर गया। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि वो रानी नायकी देवी का दोहता था, मैंने बेटी का बेटा था, उसका वो घोड़ा था शुभ्रक। हमें चेतक मालूम है, लेकिन शुभ्रक नाम का भी एक घोड़ा हमारे इतिहास में हो गया कि उसने भी इतना जबरदस्त काम किया। तो हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए कि नायकी देवी का स्मरण करते समय उसकी बेटी कुर्मा देवी, वो गुजराती कन्या है, उसने भी इतना जबरदस्त पराक्रम किया, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और पाटन में स्मारक बनाते समय इन चीजों का भी वहां उल्लेख होना चाहिए। ये भी हम अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय श्री राम।
શબ્દો પણ ઓછા પડે. પ્રબોધ ચિંતામણી જે જૈન ગ્રંથ છે એના એવિડન્સ સાથે રાજમાતા નાયકા દિવસ દેવીના આખા ઇતિહાસને દોહરાવનાર આદરણીય વિનાયક રાવજી દેશપાંડેજીને આપણે ફરીથી તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. પાટણ નગરજનોની જે હૃદયની વાત હતી, મનની વાત હતી, એ પંચતત્વ દ્વારા એમને માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ શ્રી સમક્ષ એમને માગણી કરી લીધી છે. મને અહીં આગળથી લખાવવામાં આવ્યું હતું કે આપ માગો. એ પહેલા એમને મહારાષ્ટ્રના વતની છે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ તરફથી પણ એમને જે 5 માગણીઓ કરી લીધી છે, 5 માગણીઓ આપણને મંજૂર થશે એવી અપેક્ષાથી આપણે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબશ્રીનો શરૂઆતથી જ આપણે આભાર માની લઈએ. સાચા અર્થની અંદર પાટણની પ્રભુતાને ઉજાગર કરનાર જય જય શ્રી રામ, હર હર મહાદેવના નાદથી આપણે વિનાયક રાવજીનો ફરી એકવાર જયઘોષ કરી લઈએ. હર હર મહાદેવ. આપણને વિશ્વાસ છે પાટણની પ્રભુતા જે છે ઉજાગર થશે ને થશે જ. હવે કાર્યક્રમને આપણે આગળ વધારીએ. નાયકા દેવીના જ કુળના સોલંકી યુગના જ સોલંકી કુળના જ પનોતા પુત્ર આપણા સૌના હૃદયસ્થ છે એવા માનનીય બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબ, જેમનું મૂળ વતન અહીંયા ચારૂપ છે અને સોલંકી કુળમાંથી આવે છે. સોલંકી કુળનો ઇતિહાસ ફરીથી ઉજાગર કરવા જઈ રહ્યા છે. માનનીય બલવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબને હું વિનંતી કરું કે આપ અમને આના વિશે માર્ગદર્શિત કરો, આગળ વધો. માનનીય રાજપૂત સાહેબ. આજના પાટણ ઐતિહાસિક ભૂમિ પર, પ્રાચીન શહેર એવા સ્થળ પર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, જેમને પાટણનો ઇતિહાસ, પાટણના ઇતિહાસને કેટલાય ટાઈમથી લોકો સમક્ષ જઈને આજનો જે દિવસ અહીંયા આગળ પસંદ કર્યો, એવા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત, જેમના માટે એમ કહેવાય છે કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ વિસ્તારની જે સમસ્યાઓ છે, ખાસ કરીને ધર્મ લગતી, એ તમામ ક્ષેત્રોને અગ્રતા આપી એવા આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, જેમના માટે આપણને સૌને ગૌરવ થાય. હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા સિદ્ધપુરમાં મળવાનું થયું. એમના જે વિચારો હતા, એ વિચારો અમે બધા સાથે મળીને સાંભળ્યા ત્યારે મને પણ નવાઈ લાગી કે કદાચ ચલ આપણે બેઠેલા જેટલા લોકો બેઠા છીએ એ કલ્પના ના આવે એટલા બધા આપણા પાટણ, આપણો ઇતિહાસ અને સમગ્ર ભારતનો ઇતિહાસ જેમની સમક્ષ હતો અને કેટલાય ટાઈમથી એમનું એક સપનું હતું અને આપણને સૌને વિગતે આપણને વાત કરી છે એવા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના આદરણીય વિનાયક રાવજી, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કર્ણાવતીના પ્રમુખ આદરણીય અશોકભાઈ, આજે સમગ્ર પાટણ પ્રાચીનમાં પધારેલા તમામ નાયકા દેવી માટે જેમને કહી શકાય કે જબરજસ્ત ઉત્સાહ હતો એવા તમામ વડીલો, યુવાન મિત્રો, મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલી મારી બહેનો, પત્રકાર મિત્રો, આજે મને એક વાતનો આનંદ છે. આનંદ એ વાતનો છે કે પાટણનો ઇતિહાસ, સોલંકી વંશનો ઇતિહાસ, એમ કહી શકાય કે જે પ્રમાણે દબાયો હતો અને કેવી રીતે ઉજાગર થઈ શકે એના માટે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે જે કામ કર્યા છે, આપણા પ્રધાનમંત્રી
નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પણ ગુજરાતને સોલંકી વંશમાં જે પ્રકારના કામ કર્યા છે, કદાચ હું ગાળામાં બેસું તો અનેક પ્રકારે કહી શકાય એવા અનેક પ્રકારના વડનગરના હોય, પાટણના હોય, અંબાજીના હોય, બહુચરાજીના હોય, અનેક પ્રકારના કામો જ્યારે કર્યા છે ત્યારે આ જ પરિસ્થિતિ આગળ વધે એના માટે અમારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, હું કેટલાય ટાઈમથી એમની પાસે કામ કરું છું. જ્યારે પણ આપણે કોઈ વાત, સાચી વાત, ધર્મની વાત જે દબાયું છે એને કેવી રીતે ઉજાગર કરી શકાય એના માટેના અનેક પ્રકારના કામ આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી કરી રહ્યા છે. ચાહે બહુચરાજી માટે 80 કરોડ રૂપિયા આપવાની વાત હોય, પાટણમાં 25 કરોડ રૂપિયા જે સોલંકી વંશનો શું ઇતિહાસ છે એના માટેનું મ્યુઝિયમ બનતું હોય, માં સરસ્વતી જાગૃત થાય. આજ સવારે જ સાહેબે અહીં આગળ આવીને આપણું માતાનું સ્થાન માતૃજ્ઞા એના માટેની ચિંતા કરીને આ વિસ્તારમાં પાણીની સાથે સાથે આપણું શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર બને એ પ્રકારે આજ સવારે પણ તોની વિઝિટ કરી હોય, અંબાજીની વિઝિટ હોય, એવા અનેક પ્રકારના કામ આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કર્યા છે. મારે આજે એક વાત તો આનંદ છે અને ખાસ આભાર આપ સૌ વતી માનવો છે કે જેમને પાયામાં રાજમાતા વિશે અનેક, કદાચ હું પણ એમ કહું કે મને પણ આટલી ડીપમાં સ્ટોરી ખબર નથી, એટલી આપણે સૌને ઠેઠ એમના પરિવારથી માંડીને ત્યાં સુધી વાત કરી છે. આપ સૌ વતી હું વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. એની સાથે સાથે વિનાયકરાવજીએ જે વાત કરી છે, કદાચ આપણે કલ્પના ના આવે. મેં એમને કીધું હતું પણ એમને કીધું તારીખ નહીં, તારીખ નજીકથી આવે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરીને ખરેખર પાટણ માટે અને અહીં બેઠેલા તમામ લોકો માટે ખરેખર કામ કર્યું છે. હું દિલથી અમને અભિનંદન આપું છું અને એમ કહું છું કે 2009 થી સખત ગુજરાતમાં આવીને કેવી રીતે થઈ શકે એના માટેની વાત આપણા સમક્ષ મૂકી. આજે વાત નજીક આવી છે. મેં રાજમાતા વિશે ઘણી બધી સ્ટોરી કીધી છે પણ મારી પાસે જે મેં સાંભળ્યું છે, જે મેં અનુભવ્યું છે કે મોહમ્મદ ઘોરી એટલા હદે નાઠો તો કે ઠેક પાકિસ્તાન જઈને એના ઘોડા ઉપરથી ઉતર્યો હતો એવું પણ આપણો ઇતિહાસ આજે બતાવે છે. 70,000નું લશ્કર હોવા છતાં જ્યારે આટલી પદ્ધતિસર યુદ્ધ થયું હોય અને એનો ઉજાગર આપણા કેટલાય વર્ષોથી કદાચ કલ્પી ના શકાય કે આપણા જાણ બહાર જતું હોય એવી આપણા બધાને જ્યારે ખબર પડી છે ત્યારે જે પ્રમાણેની માગણીઓ કરવામાં આવી છે, અમારા મુખ્યમંત્રી શ્રી તો મનથી તમે નક્કી કરો એટલે તમામ પ્રકારનું કામ અકારમક કરતા હોય છે, કલ્પના બહાર કરતા હોય. જ્યારે ખરેખર સાહેબને જ્યારે વાત કરવામાં આવી ત્યારે મને ખાતરી છે કે કદાચ આપે 5 માગણીઓ કરી છે પણ વિશેષમાં કંઈક 11 કરી હોત તો પણ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી કરી દીધી હોત એની પણ મને ખાતરી છે. એટલે આપણે સૌ સાહેબને કદાચ હું તો નજીકતાથી જોયા છે, મને આજે પણ ખબર છે, મારો આ જાત અનુભવ કે બહુચરાજીના કિસ્સાની અંદર સૌથી પહેલા જ્યારે જે પૈસા મંજૂર થયા હતા ત્યારે અમે સાહેબ પાસે 35 કરોડ રૂપિયા માગવા ગયા હતા. સાહેબ સમજ્યા, હા કર્યું અને હું આજે પણ કહું છું 8:30 વાગે રાત્રે સાહેબે 80 કરોડમાં ફાઇલ એમના જાતે ડેવલપમેન્ટ કરીને કરી છે. તો આજે વિશેષ નહીં કહેતા, આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને જ આપણે સાંભળવા છે. મુખ્યમંત્રી સાહેબ પાસે આપણે કંઈક કરવું છે. આપણો ભવ્ય ભૂતકાળ પાટણ જાગૃતિ માટેનો અનેક લોકો કરે છે. હું તો એ સમાજમાંથી આવું છું, જોડાયેલો છું,
હું બધાને નમન કરીને એમ કહું છું કે અદ્ભુત આપણો ઇતિહાસ, એમાંથી અનેક પ્રકારની પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થતી હોય છે. ત્યારે આજે આદરણીય આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી આપણને ચોક્કસપણે જે પ્રમાણે વિનાયક રાયલજીની ઈચ્છા છે, જે પ્રમાણે આપણા સૌની ઈચ્છા છે, એ પ્રમાણે ચોક્કસપણે પૂર્ણ કરશે. ફરીથી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનો પાટણના મિત્રોથી માંડીને એમની ટીમનો આપ સૌ વતી ખૂબ દિલથી આભાર માની વિનવું છું. ભારત માતા કી જય. જય જય શ્રી રામ. પાટણની પ્રભુતા અમર રહો. ખૂબ ખૂબ આભાર. એક બાજુ દાતા છે અને બીજી બાજુ દાદા છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભામાશાહ એવા બલવંતસિંહજી સાહેબને ફરી એકવાર આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. નમો લક્ષ્મી અને નમો સરસ્વતી બંને દેવી સ્વરૂપની યોજનાના પ્રણેતા અને જેઓ હુલામણા નામ દાદાથી સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજાના હૃદય સમ્રાટ બનેલા રાજેશ્વર એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને હું આજના અધ્યક્ષ મહોદય પદે બિરાજમાન છે વિનંતી કરું કે આપ સમયની પાબંદી વગર ઉદ્બોધન કરી અમારી મનોકામનાઓ, અમારી અપેક્ષાઓ સાર્થક કરો એવી અપેક્ષા સહ માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ શ્રી. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ગુજરાત પ્રાંત દ્વારા આયોજિત રાજમાતા નાયકા દેવી ગૌરવ દિન સમારોહ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી વિનાયકરાવજી દેશપાંડે, મારા સાથી મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત, ક્ષેત્રના મંત્રી શ્રી અશોકભાઈ રાવલ, આમંત્રિત સૌ મહાનુભાવો, નાયકા દેવીના અભિનેત્રી શ્રી ખુશીબેન શાહ, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી લવિંગજી ઠાકોર, જિલ્લા પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી નંદાજી ઠાકોર, જિલ્લાના અધ્યક્ષ શ્રી દશરથજી, પ્રદેશના પૂર્વ મહામંત્રી શ્રી કેસી પટેલ, પૂર્વ સંસદીય સચિવ શ્રી રણછોડભાઈ રબારી, પદ્મશ્રી સૌજીભાઈ ધોળકિયા, આમંત્રિત સૌ મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. જય શ્રી રામ. માગણીઓ બધી માગણીઓ મૂકીને સ્વીકારી ગઈ છે, એમાં મારે કશું કરવાનું રહ્યું અને સારી રીતે જેટલી માગણીઓ મૂકી છે એમાં કેવી રીતે સારી રીતે થઈ શકે એના માટેનું સાથે બેસીને આયોજન કરીશું કે ભાઈ જેથી કરીને આપણી વિરાસત, આપણો ઇતિહાસ, આપણું ગૌરવ લોકો સુધીને આપણે જે પહોંચાડવા જઈ રહ્યા હોય તો એ માટે વક્તામાં કેટલી તાકાત હોય એ આજે આપણને ખ્યાલ આવ્યો ને. આપણને એમ લાગે કે અત્યારે આ આખી ઘટના અત્યારે આપણી સામે બની રહી હોય એવી રીતે આજે એમણે બધી આખું વર્ણન એવું રીતે ઘણા બધા, એટલે એમાં હું પણ આવી ગયો કદાચ, એટલો બધો ઇતિહાસ તો મને ખબર નહીં હોય, પણ ખૂબ સારી રીતે આજે એમણે આખી વાત મૂકી. આપણને આમ જેને કહેવાય ને, પેલા નથી કહેતા રૂવાડા ઉભા થઈ જાય, રૂવાડા ઉભા, આપણને જુસ્સો આવી જાય. ભાઈ બહાર જુસ્સો નહીં કાઢવાનો, એકદમ ત્યાંથી નીકળ્યા છે. પણ આપણા વિશ્વના સૌથી
લોકપ્રિય નેતા અને ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં નારી શક્તિ, યુવા શક્તિ, ગરીબ અને અન્નદાતા ખેડૂતોનું મહત્વ આપણને સમજાવ્યું છે. વિકાસ અને વિરાસત બંનેના સમન્વયની પણ એમણે હિમાયત કરી છે. આજનો આ સમારોહ ગુજરાતની નારી શક્તિના પ્રતીક અને પાટણના રાજમાતા નાયકા દેવીની વિરાસતને ઉજાગર કરવાનો અવસર છે. હિન્દની વિરાંગના આર્યપુત્રી નાયકા દેવીના અતુલ્ય પરાક્રમ, સાહસ અને રાજ્ય શાસનને ઇતિહાસના પાનાઓમાંથી બહાર લાવી લોકો સમક્ષ મૂકવાનો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનો આ સાર્થક પ્રયાસ છે. માં ભારતીના સપૂતની જેમ આર્યપુત્રીઓ પણ ત્યાગ, બલિદાન અને વીરતાના દર્શન કરાવ્યા છે. આક્રાંતાઓ અને હુમલાખોરો સામે પ્રજા અને રાજ્યને રક્ષણ આપવામાં નાયકા દેવી જેવા શાસકોએ અપ્રતિમ જુસ્સો અને યુદ્ધ નીતિ દાખવી છે. આપણે રાણી લક્ષ્મીબાઈ, રાણી ચેન્નમ્મા, અહલ્યાબાઈ વાતો ખૂબ સાંભળી છે. શાળા કોલેજોમાં તેમના વિશે ભણ્યા પણ છીએ. ગુજરાતના ગૌરવશાળી શાસક પાટણના રાજમાતા નાયકા દેવી પણ દુનિયા ઓળખે તેવું યશોગાન કરવાની આપણી ફરજ છે. ભારત ભૂમિની બાહોશ વિરાંગનાઓમાં, મહિલા યોદ્ધાઓમાં નાયકા દેવીનું સ્થાન અગ્રીમ હરોળમાં છે. 11મી સદીમાં જુલ્મી શાસક મોહમ્મદ ઘોરીને ગુજરાતીઓના સૌરવનો પરચો અપાવનાર નાયકા દેવી ગુજરાતનું અટલ ગૌરવ છે. મુલતાન, પંજાબ, પેશાવર અને દિલ્હીને જીતનાર ઘોરીને નાયકા દેવીએ ગુજરાતના સીમાડે આબુ પાસે જ મારીને પાછો ભગાડી દીધો. સૈનિક પરિધાનમાં સજ્જ નાયકા દેવીને ઇતિહાસકારોએ મહિષાસુર હણવા નીકળેલા સાક્ષાત દુર્ગામાની ઉપમા આપી છે. જોગનાથની ટેકરી ઉપર ઉભેલી જાણે એ જગદંબા હતા. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી હંમેશા કહે છે, જે દેશ પોતાના ઇતિહાસનું, સાહસ, શૌર્યનું, ગાથાનું સ્મરણ સન્માન નથી કરતો તેની સંસ્કૃતિ સદાકાળ જીવંત રહી શકતી નથી. વડાપ્રધાન શ્રી એટલા માટે જ આપણી વિરાસત, ઇતિહાસ પર ગૌરવ કરીને પ્રેરણા આપી છે. વિરાસત બી, વિકાસ બી એ મંત્ર વડાપ્રધાન શ્રી આપણને આપ્યો છે. ગુજરાતની પ્રાચીન રાજધાની અણહિલપુર પાટણ સુરવીરતા, ત્યાગ, બલિદાન અને દેશભક્તિ તથા સાંસ્કૃતિક ધરોહરનો વારસો સાચવીને બેઠું છે. જગ પ્રસિદ્ધ પટોળા, વીર મેઘમાયા સ્મારક અને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ રાણકી વાવનું વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી રાજ્ય સરકારે યથોચિત ગૌરવ કર્યું છે. વિરાસતો સાથે વિકાસનો રાહ પાટણે ભલીભાંતિ અપનાવ્યો છે. આપણી વર્તમાન અને ભાવિ પેઢી આવા અમર ઇતિહાસથી વાકેફ બને તે અંગેનું શિક્ષણ, જાણકારી તેમને મળે તે સમયની માંગ છે. સમયની આ માંગની પારખીને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ દેશને નવી આધુનિક સમયાનુકૂળ શિક્ષણ નીતિની ભેટ આપી છે. નિકેલોનની શિક્ષણ પદ્ધતિ અને ડાબેરીઓ ઇતિહાસકારોથી પ્રભાવિત પાઠ્યપુસ્તકોએ હંમેશા હુમલાખોરોને, આક્રાંતાઓને સારા શાસકો ગણાવ્યા. ભારતના સાચા સપૂત, સુરવીર યોદ્ધાઓ અને યશસ્વી શાસકોની ઉપલબ્ધિઓને ક્યારેય ઉજાગર કરી નહીં. નવી શિક્ષણ નીતિ મુજબ આપણા બાળકો, વિદ્યાર્થીઓને ગુલામીની માનસિકતાવાળા પાઠ્યક્રમને બદલે ભારતીય શૌર્ય અને યશ કીર્તિ જણાવતો સાચો ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવશે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ નાયકા દેવીની ગાથાને ઉજાગર કરવા જે પણ કાર્યક્રમ અને પ્રકલ્પોનું આયોજન કર્યું છે તે પણ એટલા જ ઉપયોગી નીવડશે એવો મને વિશ્વાસ છે. ભારતની નારી શક્તિ યુદ્ધ મેદાને પણ યોગદાન, બલિદાન આપવા સક્ષમ છે. ક્યારેય પાછી પડે એમ નથી તેનું ઉદાહરણ રાજમાતા નાયકા દેવી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ભારતની આ નારી શક્તિનું સન્માન કરવા, ભારતની દીકરીઓને રણભૂમિમાં રાષ્ટ્ર સેવા કરવાની સમાન તક આપવા માટે મક્કમ નિર્ણયો કર્યા છે. આપણા સુરક્ષા બળો
આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, BSF વગેરેમાં પણ નારી શક્તિને જોડવાની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન વડાપ્રધાનશ્રીએ પૂરું પાડ્યું છે. ઐતિહાસિક નિર્ણય કરીને મોદી સાહેબે દેશભરની સૈનિક સ્કૂલોના દ્વાર દીકરીઓ માટે ખોલી નાખ્યા છે. દીકરીઓ માટેની દેશની પહેલી સૈનિક સ્કૂલનો ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રારંભ મોદી સાહેબે કરાવ્યો છે. આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં કરીશું, તારો નામનું ધ્યાન રાખીશું. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં દેશભરમાં 100 નવી સૈનિક સ્કૂલો સ્થાપવાની દિશામાં કાર્ય થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં આપણે 10 રક્ષા શક્તિ સૈનિક સ્કૂલ શરૂ કરી રહ્યા છે. તેમાંથી 3 સ્કૂલ દીકરીઓ માટેની છે. આ સૈનિક સ્કૂલ બાહોશ યોદ્ધા નાયકા દેવીને આપણી ભાવાંજલિ છે. ન્યાયપ્રિય શાસન મીનળ દેવી, યશસ્વી સિદ્ધરાજ જયસિંહ, વિદ્વાન હેમાચંદ્રાચાર્ય વગેરે શ્રેષ્ઠીઓના કારણે ગુજરાતની અસ્મિતા ચોમેર ફેલાઈ છે. હવે વીરાંગના નાયકા દેવીની સ્મૃતિઓ પુનઃજીવિત કરી આપણી આવનારી પેઢીના રાષ્ટ્ર ગૌરવ અને અસ્મિતાના સાથે આપણે આગળ વધવું છે. ભારતની નારી શક્તિનો કેસર વર્ણો ઇતિહાસ ગાવામાં આપણે ઊંડા ઉતરવું નથી. રાજમાતા નાયકા દેવી ગુજરાતના ગૌરવ અને ગુર્જર અસ્મિતાનું અનન્ય પ્રતીક બની રહે અને વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં આપણા સૌની પ્રેરણા બને તેવી અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય શ્રી રામ. માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ શ્રીનો ફરી એકવાર આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ. નારી શક્તિને સાચા અર્થની અંદર ઉજાગર કરવા માટે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના સપનાને સાકાર કરવામાં એમનો શ્રેય ફાળો જે યોજના આપી, નમો સરસ્વતી નમો લક્ષ્મી નામે જે યોજનાઓ આપી અને એના પ્રણેતા બન્યા છે, મક્કમ મનોબળ છે, કામ કરવાની અંદર માનવાવાળા છે એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનો પાટણ નગરજનો વતી ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. હવે અંતે હિતેશભાઈ ઠક્કર ખાસ મિત્રોને વિનંતી, નગરજનોને વિનંતી કે આપણે ડાયસ છોડીશું નહીં. આપણા મહેમાનો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત જ છે. ટૂંક સમયની અંદર જ 2 જ મિનિટમાં આપણો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થઈ જશે. માનવંતા મહેમાનો અહીંથી જ્યારે પોતાનું વિજય ભવ તરફ જાય એના પછી જ આપણે ભોજન લઈને જ આપણે આપણા કાર્યક્રમનું સમાપન કરીશું. હિતેશભાઈ ઠક્કર, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ મહેસાણા વિભાગ મંત્રીને હું વિનંતી કરું કે આભાર દર્શન કરી કાર્યક્રમનું સમાપન કરે. ત્યારબાદ શાંતિ મંત્રનું પણ તેઓ લઈ અને આપણે બધા સાથે ભોજન લઈશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય શ્રી રામ. આજના ઐતિહાસિક સમારંભમાં ઉપસ્થિત સમારોહના અધ્યક્ષ શ્રી માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી બલવંતસિંહજી રાજપૂત, નાયકા દેવી ફિલ્મના અભિનેત્રી શ્રી ખુશીબેનનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. વિવિધ ક્ષેત્રના પદાધિકારી, પોલીસ પ્રશાસન, મીડિયાકર્મી શ્રી, યુનિવર્સિટીના વીસી સાહેબ, સ્ટાફગણ, હોલમાં નીચે બેસીને પણ કાર્યક્રમને નિહાળ્યો છે એ બધાનો હું ઋણી છું. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વતી આપ સર્વેનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. શાંતિ મંત્ર બોલીને આપણે કાર્યક્રમને અહીંયા પૂર્ણ કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. કાર્યક્રમને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. ભોજન લઈને જઈશું. બહેનો માટે ભોજનની અલગ વ્યવસ્થા છે અંદર હોલની બહાર જ, તો બહેનો જરા ભોજનની વ્યવસ્થા જોવે.